بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈینٹس چیپٹر ہمارا دا مین ہو واز اے ہاسپٹل جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، اور ہم اس کی ٹیکسٹ ایکسرسائز ہم نے اسٹارٹ کی تھی، جس کے اندر شارٹ کوشچن ہم نے شروع کیے تھے، اور کوشچن نمبر 5 تک لاسٹ لیکچر میں کوشچن نمبر 5 تک ہم پہنچے تھے. تو اب آج جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے وہ کوشچن نمبر 6 سے سٹارٹ کرنا ہے. 5 تک پچھلے لیکچر میں مکمل ہو گئے تھے. تو کوشچن نمبر جو 6 ہے وہ کیا ہے جی؟ دا رائٹر دیٹ ہی واز ڈوئنگ ڈاکٹر اے گڈ ٹرن بائی گوئنگ ٹو ہم بائی. رائٹر یہ کیوں سمجھتا تھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اچھا کر رہا ہے، یہ ایک اچھا کام کرنے جا رہا ہے؟ یہ کوشچن کی ڈیمانڈ ہے بیٹا. اگر اس کی ہیڈنگ بنانا چاہیں، ڈوئنگ اے ڈاکٹر اے گڈ ٹرن بائی گوئنگ ٹو ہم، یہ آپ اس کی چھوٹی سی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں. آنسر پٹ کرنے سے پہلے آپ اس کی یہ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں اگر بنانا چاہیں، نہیں بھی تو پھر بھی آنسر تو ٹھیک ہی ہوتا ہے. دا رائٹر تھاٹ دیٹ ٹو بی اے پیشنٹ آف آل ڈیزیز. چونکہ اب ہم کوشچن بھی کافی سارے کر چکے ہیں اور ہم نے ٹیکسٹ کو بھی پڑھا ہے، تو چونکہ رائٹر یہ سمجھتا تھا، رائٹر کا خیال یہ تھا کہ اس کے اندر تمام تر بیماریاں موجود ہیں، اس کے اندر تمام تر ڈیزیزز کی جو علامات ہیں وہ موجود ہیں. دا مین آبجیکٹ آف دا ڈاکٹر از ٹو گیٹ پریکٹس. اور جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا مین آبجیکٹ جو ہوتا ہے، اصل جو اس کا پرپز اور مقصد ہوتا ہے، از ٹو گیٹ پریکٹس حاصل کرنا، ایکسپیرینس حاصل کرنا، تجربہ حاصل کرنا. یہ ایک ڈاکٹر کا مین پرپز ہوتا ہے. ہی تھاٹ دیٹ ڈاکٹر وڈ گیٹ مور پریکٹس آؤٹ آف ہم دین آؤٹ آف 1700 آف آرڈنری. اس کا یہ خیال تھا کہ 1700 پیشنٹ، آرڈنری پیشنٹ، 1700 پیشنٹس کا علاج کر کے، اس کا چیک اپ کر کے، اس کی ٹریٹمنٹ کر کے، ایک ڈاکٹر کو جتنا ایکسپیرینس حاصل ہوگا اس سے کہیں زیادہ مور پریکٹس، اس سے کہیں زیادہ تجربہ، ان کو میرے اوپر علاج کر کے، میری ٹریٹمنٹ اور میرا چیک اپ کرنے کے بعد ان کو جتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ، اتنا تجربہ ان کو عام کامن جو تقریباً کوئی 1700 کی تعداد بتائی گئی ہے، لگ بھگ 1700 پیشنٹس کو علاج کر کے، آپریٹ کر کے، چیک اپ کر کے، ٹریٹمنٹ کر کے، ان کی دیکھ بھال کر کے، ان کو صحت یاب بنا کے بھی اتنا ایکسپیرینس، تجربہ حاصل نہ ہوگا جتنا ایکسپیرینس صرف اس ایک کا. یہ رائٹر کا خیال ہے کہ اس کے ایک کا علاج کر کے وہ اس سے کہیں زیادہ پریکٹس گین کر سکتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، اور کہیں زیادہ اپنے نالج کے اندر وسعت لے کے آ سکتے ہیں اور اپنے نالج کو انہانس کر سکتے ہیں. Therefore he was doing a doctor a favor. اس لیے وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ ڈاکٹرز کو یہ فیور دینا چاہتا ہے اور فیور دے رہا ہے. تو یہ بیٹے ڈیمانڈ تھی کوشچن کی، جو آپ نے آنسر کی صورت میں پوری کر دی. آپ دیکھیں گے کوشچن نمبر 7، یہ میں نے ریڈ سے لکھ دیا کوشچن نمبر 7. اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے بیٹے، بس یہ کہ یہ جو کوشچن ہے نا، یہ بہت بار پیپر میں آ چکا ہے. کئی بار ملتان بورڈ میں، بہاولپور بورڈ میں، دوسرے بورڈز کے اندر، ڈفرینٹ ڈیٹس کے اندر اور ڈفرینٹ بورڈز کے اندر یہ اکثر آ جاتا ہے. کوشچن انتہائی آسان کوشچن ہے، چیپٹر کے اندر بھی ہم نے پڑھا ہے، اور ویسے بھی اس کو ایک دفعہ پڑھ لینے کے بعد بھی آپ اس کو فوراً یاد کر لیں گے. انتہائی ایزی کوشچن ہے. واٹ واز دا پریسکرپشن گیون ٹو ہم بائی دا ڈاکٹر؟ وہ نسخہ کیا تھا، اس نسخے کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا جو ڈاکٹر نے اسے دیا، یعنی رائٹر کو. پہلے تو اس کی نا ہیڈنگ اگر بنانا چاہیں تو پریسکرپشن گیون ٹو ہم بائی دا ڈاکٹر. اگر اس کی ہیڈنگ بنانا چاہیں تو وہ یہ بنے گی. تو یہ پریسکرپشن نسخہ وہ جو ڈاکٹر نے لکھا اور فولڈ کر کے رائٹر کو دے دیا تھا، رائٹر بغیر پڑھے میڈیکل اسٹور والے کے پاس، میڈیکل کیمسٹ کے پاس لے گیا تھا. تو وہ نسخہ کیا تھا، اس کے 3-4 جو پوائنٹ ہیں اس کو آپ نے، ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے. اور اس کی ترتیب تھوڑی اگر آگے پیچھے ہو جائے تو اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو سب سے پہلے جی دا پریسکرپشن ریڈ، اس میں یہ درج تھا. کیا درج تھا جی؟ سب سے پہلے ہم اس کو نمبر 1 دے دیتے ہیں. 1 IB بیف اسٹیک ایوری 6 hours. 1 پاؤنڈ گوشت کا استعمال کرنا ہے ہر 6 گھنٹے کے بعد، یعنی گوشت زیادہ سے زیادہ آپ نے استعمال کرنا ہے. نمبر 2 10 mile walk every morning. ہر صبح آپ نے تقریباً 10 میل کا سفر پیدل چلنا ہے، واک کرنی ہے، مین ٹو سے کہ ایکسرسائز کرنی ہے.
जैसा कि सब लोग करते हैं। तो ये आपने ये काम करना है, रोजाना सुबह उठ के सुबह सुबह ठंडी हवा के अंदर एक्सरसाइज करनी है तकरीबन 10 मील। उसके बाद ये दूसरी 2 मेडिसिन होगी। तीसरी मेडिसिन, ये मेडिसिन है नहीं, वैसे चूंकि उसने नुस्खे के ऊपर ये लिख के दिया तो मैं वैसे मेडिसिन कह रहा हूं, अदरवाइज गोश्त खाना वो वैसे ही हमारी फूड का हिस्सा है, वॉक करना ये वैसे हमारी हैबिट का हिस्सा होता है, तो मैं वैसे उसे मेडिसिन कह रहा हूं। तो मेडिसिन नंबर 3, बेड एट 11 शार्प एवरी नाइट। रात को लाजमन 11 बजे से पहले सो जाना है, अपने बिस्तर पे सो जाना है। इसका मतलब ये है कि रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, चूंकि वॉक भी करनी है तो रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। ये मेडिसिन नंबर 3 हो गई। और मेडिसिन नंबर 4 की हम बात करते हैं, जिसमें क्या है, एंड डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। वहां जाके ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया जी। हर उस चीज से परहेज करना है, अपने जहन के अंदर, दिमाग के अंदर ऐसा कुछ नहीं भरना जिसके बारे में आप जानते नहीं है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जो आपकी फील्ड नहीं है। चैप्टर के अंदर भी बेटे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो लास्ट मेडिसिन उसने लिखी है, लास्ट नुस्खा लिखा है, एडवाइस तजवीज लिखी है, तो ये मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है नंबर 4 पे। ये देखें कि आप थोड़ा सा, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था चैप्टर पढ़ते हुए, देखें एक डॉक्टर की जगह अगर इंजीनियर काम करना शुरू कर देगा तो क्या होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। डॉक्टर की सीट के ऊपर बैठ एक इंजीनियर को अगर आप बिठा देंगे तो वो इंजीनियरिंग का उसके पास नॉलेज है, मेडिसिन का नहीं है, वो उसकी सीट पे बैठ के काम करेगा तो तबाही फैलाएगा। इसी तरह एक इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर आप अगर ला के एक डॉक्टर को खड़ा कर देंगे तो वो डॉक्टर क्या करेगा, तबाही करेगा, खराबी करेगा, डिस्ट्रक्शन हर तरफ होंगी। वजह क्या है, जो राइटर कहना चाहता है कि अपने जहन में ऐसा कुछ मत भरें जिसके बारे में आप जानते हैं, जो आपकी मुतलका फील्ड नहीं है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, अगर उस फील्ड के अंदर आप घुसेंगे तो प्रॉब्लम्स होंगे। अब राइटर के साथ क्या हुआ है, हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। देखें वो डॉक्टर नहीं था, उसको नहीं पता था कि ये किताब उसने मेडिसिन की किताब उठा ली, डिजीज की किताब उठा ली, तमाम बीमारियों का मुताला करना शुरू कर दिया, जबकि ये डॉक्टर का काम होता है। उनकी सिम्पटॉम्स, अलामात का मुताला शुरू कर दिया, जबकि ये भी डॉक्टर का काम होता है। उसकी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया कि किस बीमारी की क्या अलामत होगी, ये सवेयर कंडीशन में है या इनिशियल कंडीशन पे है, इसका इलाज कैसे होगा, ये सारी चीजें। अब जब ये सारी चीजें उसने रीड आउट की तो वो वहम का मरीज बन गया। वो बीमार था नहीं, पर उस बुक को पढ़ने के बाद वो बीमार बन गया। लिहाजा अपने जहन में कभी कुछ ऐसा मत ठोसे जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जो हमारी फील्ड नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो परेशान होंगे, परेशानी में इजाफा होगा और बीमार होंगे। तो ये बेटे 1 2 3 4 ये 4 डिजीजेज, ये 4 आपको, इसको आप डिजीजेज का नाम दे दें बेटे, इसको आप एडवाइस का नाम दे दें। वैसे ये है तो एडवाइस, लेकिन चूंकि नुस्खे पे लिखी थी तो इसलिए मैंने फिर उसको डिजीज कह के पढ़ लिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का, अक्सर मुल्तान बोर्ड में भी अक्सर आ जाता है और दूसरे बोर्ड्स के अंदर भी। तो ये हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा बेटे, उसके बाद अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। डिस्क्राइब द राइटर्स विजिट टू द केमिस्ट। केमिस्ट दवासाज, यानी वो जो मेडिकल स्टोर वाला होता है, जिसके पास दवाएं वगैरह होती हैं और वो हम उसके पास वो प्रेस्क्रिप्शन लेके जाते हैं और वो हमें दवाएं प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो इसकी हेडिंग बनाना चाहें तो राइटर्स विजिट टू द केमिस्ट, कि दवासाज के पास राइटर का जो विजिट, यानी ये जो उसके पास गया तो इनके दरमियान में क्या गुफ्तगू हुई, क्या बात हुई। The writer went to the chemist and gave him to the prescription. Prescription नुस्खा। राइटर केमिस्ट के पास गया, दवासाज के पास, और उसके पास चूंकि जो नुस्खा था, और आपको याद होगा राइटर ने नुस्खे को पढ़ा नहीं था, राइटर ने नुस्खे को जैसे उसने फोल्ड करके दिया था वैसे दे दिया। द मैन रीड इट। अब उसको उस मेडिकल स्टोर वाले ने, केमिस्ट ने, दवासाज ने पढ़ा एंड रिटर्न टू द राइटर, और उसे राइटर को वापस कर दिया कि जैसे उसके पास ये दवाएं नहीं हैं। He said that he did not have the required thing. उसने कहा देखें, आपको दरकार चीजें, आपको जो चीजें दरकार हैं वो यहां अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा अभी हमने पढ़ा है कि प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर क्या लिखा था, तो प्रेस्क्रिप्शन रीड, नुस्खे पे ये दर्ज था, वो ये 4 दर्ज झैल चीजें जो यहाँ पे लिखी गई हैं, वो उस नुस्खे पे तो ये लिखा था। अब जरा सोचें
उस क्वेश्चन को वहां पे स्टॉप करके अब जरा सोचें यहाँ पे कि इनमें से कौन सी चीज मेडिकल स्टोर वाले के पास होती है। मेडिकल स्टोर वाले के पास ना ही गोश्त होता है, ये एक्सरसाइज करना ये तो उसका अपना वैसे काम था, रात को जल्दी सोना जल्दी उठना इसका भी मेडिकल स्टोर से कोई ताल्लुक नहीं है। अपने दिमाग में ऐसी चीजें मत ठोंसें जिनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये भी, इसका भी ताल्लुक मेडिकल स्टोर से नहीं है। पूरे के पूरे नुस्खे का, पूरी की पूरी जो प्रेस्क्रिप्शन थी, उस पूरी की पूरी प्रेस्क्रिप्शन का ताल्लुक मेडिकल स्टोर से तो था ही नहीं, केमिस्ट से तो था ही नहीं, तो उसने वापस कर दिया। He said that he might have helped him if he had been a cooperative store. उसने कहा देखें मैं आपकी जरूर मदद कर सकता अगर मेरा कोऑपरेटिव स्टोर या फैमिली होटल कंबाइंड, देखें मेरे पास या तो कोई होटल होता, मैं होटल को चला रहा होता, या मेरे पास कोऑपरेटिव स्टोर होता तो मैं आपकी शायद कोई हेल्प कर भी देता, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपके इस दर्ज झैल नुस्खे के मुताबिक, प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक आपकी हेल्प कर सकूं, आपको ये दवाएं फराहम कर सकूं जो ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो चीजें यहाँ पे दर्ज हैं। तो इसलिए उसने वो जो प्रेस्क्रिप्शन थी उसको वापस कर दी कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस। सिग्निफिकेंस, अहमियत, इंपोर्टेंस या अहमियत। डोंट स्टफ योर हेड, यू डोंट अंडरस्टैंड। ये जो डॉक्टर ने एक एडवाइस लिखी थी, उस एडवाइस का की इंपोर्टेंस क्या थी, ये एडवाइस नंबर 4 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये जो नंबर 4, इस पे ना एक अलग से क्वेश्चन बनाया गया है कि इसकी, चूंकि मैंने आपको अभी कहा है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है और अक्सर लोग बेटे इसका शिकार हो जाते हैं। अनपढ़ ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग ऐसी चीजों का शिकार हो जाते हैं कि जब एक पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, एजुकेटेड पर्सन जब किसी दूसरे के फील्ड में जाके घुस जाता है जिसके बारे में उसने पढ़ा नहीं होता, एक्सपीरियंस गेन नहीं किया होता, एग्जाम्स नहीं दिए होते, तो फिर उसको परेशानी का ही सामना करना पड़ता है। तो ये जो एडवाइस थी, डोंट स्टफ योर हेड, यू डोंट अंडरस्टैंड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइटर के मुताबिक इसकी अहमियत क्या बनती है। तो इसका आंसर देखते हैं जी। क्या हेडिंग बनाना चाहें तो वो इसको आप बना सकते हैं, डोंट स्टफ योर हेड, यू डोंट अंडरस्टैंड, तो इसकी आप हेडिंग भी बना सकते हैं। आंसर इसका है बेटे, इट इज एन इंपॉर्टेंट एडवाइस। बहुत ही अहम ये बात है। इट मीन्स दैट वी शुड नॉट बोदर आवरसेल्फ विद द थिंग्स। बोदर होता है जहमत देना, हमें दूसरी चीजों के साथ घुसना नहीं चाहिए। वी डोंट अंडरस्टैंड, जिनका हमें पता ही नहीं है, जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है, अगर हम उनको अपने जहन के ऊपर डाल लेंगे, अपने जहन के अंदर डाल लेंगे तो तबाही होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी फील्ड नहीं है। इफ वी ट्राई टू डू द थिंग्स अबाउट विच वी डू नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज। देखें, जब हम किसी ऐसी चीज में घुसेंगे जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज हमने गेन नहीं किया, हमने कोई एग्जाम नहीं दिया, हमने कोई प्रॉपर बुक नहीं पढ़ी, हमने प्रॉपर क्लासें नहीं ली, अगर हम उसमें घुसेंगे तो क्या होगा? द रिजल्ट वुड बी ओनली कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन। परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कंफ्यूजन, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और या दूसरा क्या है जी? तबाही। दो ही चीजें हैं, दो ही इन चीजों का, इस सारी बात का जो निचोड़ निकलेगा वो ये कि हम खुद परेशान भी होंगे और उस मुतलका फील्ड के अंदर हम तबाही फैलाएंगे। मतलब ये कि उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बुरे नतीजे आएंगे, गंदे रिजल्ट निकलेंगे। तो इस सूरत में जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसकी जो हेडिंग नंबर 4 थी, हेडिंग कह लें या एडवाइस नंबर 4 कह लें, तो ये चूंकि इसी एडवाइस का जिक्र वहां पर भी किया गया क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी, और फिर इसी को एक अलग सवाल बना के, अलग क्वेश्चन नंबर 9 के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अलग से क्वेश्चन बना के जो पूछा गया है कि इसकी अहमियत और इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी अहमियत और इंपॉर्टेंस सिर्फ ये है कि अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और नॉलेज के बगैर आपको सिर्फ दो चीजों का सामना करना पड़ेगा, कंफ्यूजन का और डिस्ट्रैक्शन का। इसके अलावा नथिंग मोर, और कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। तो बेटे ये हमारा चैप्टर जो है द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल विद एक्सरसाइज आज के लेक्चर में ये मुकम्मल हो गया। यानी टेक्स्ट, ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स और एक्सरसाइज ये मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो नेक्स्ट न्यू चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर हमारा विद एक्सरसाइज मुकम्मल हो गया। थैंक यू वेरी मच।